Good morning, all of you. Today I am discuss second chapter, ether, preparation and property. And last lecture are discuss about chemical property of ether, and next reaction last halogenation or chlorination, bromination, halogenation. Halogenation of ether. ओके स्टूडेंट्स, हेलोजिनेशन ऑफ ईथर में आपने देखा था कल एक शॉर्ट कली, फिर से मैं वो रिएक्शन आपको याद करा रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। पीडीएफ के द्वारा आपको मालूम हो चुका है। व्हेन द डाईएथिल ईथर व्हेन द डाईएथिल ईथर react with chlorine at sunlight or dark reaction बोल सकते, dark reaction firstly low hydrogen or one hydrogen are reduced from this first carbon atom attachment of the oxygen group or ether group, and one chlorine are reduced from HCl, and then form main product are CH3CH. Substitution reaction, hydrogen substitutes of the chlorine, so of the chlorine, then oxygen present, CH2 and CH3. Against the same hydrogen presence in the two hydrogen, then another chlorination reaction, Cl2 minus HCl, because this hydrogen substitutes of the chlorine, so main products are CH3, CH, single bond O, CH, CH3. Substitutes of the chlorine, because the dark reaction, so it is the two hydrogen replaced by chlorine. If the sunlight reaction, all hydrogen replaced by chlorine in the halogenation. Okay guys, this product is 1,1 diethyl 1,1 diethyl 1,1 diethyl 1,1 डाइक्लोरो होगा बेटा, पहले 1,1 2 है डाइक्लोरो डाइएथिल 2 एथिल है डाइएथिल ईथर डाइएथिल ईथर 1,1 chloro because 1,1 chloro because containing of the oxygen is the first carbon, so it is called 1,1 dichloro diethyl, because the hydrogen 1 2, it is called the ethyl and ether. The main products of the halogenation in the dark reaction is 1,1 dichloroethyl ether. Any problem this reaction, student? Yes. अच्छे से मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? Okay. Now next reaction are halogenation of methyl phenyl ether. Methyl phenyl ether. Methyl phenyl ether or anisole. Anisole are the aromatic
aromatic ether, presence of the oxygen and CH3. This is called anisole or this is called anisole or methyl phenyl ether. Methyl phenyl ether or react with bromine. This is called chlorination because the reaction of the chlorine and this is presence of the bromine. So this reaction is called bromination. Replaced by halogen X group, so it is called halogenation. Now this reaction are produced or anisole or methylphenyl is two components are carried out of HBr. This reaction is dark reaction. This presence of the acidic medium or presence of CH3COOH. एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन क्या होगी कि इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि यहां से हाइड्रोजन जो होगा वो सब्स्टिट्यूट करेगा ब्रोमीन को, वन ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, HBr बाहर कर देगा। अब इसी की जगह पर वन ब्रोमो जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बिकॉज द मार्कोनी का रूल लो हाइड्रोजन, जहां पर बहुत कम हाइड्रोजन होता है वहां पर सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इसमें देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो 2 वाले हाइड्रोजन में ही रिप्लेसमेंट हुआ था जिसको सब्स्टिट्यूशन किया था। HBr निकल गया। यहाँ पर ऑक्सीजन और कैफीन में कोई अंतर नहीं आएगा, बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा, केवल यहाँ पर ब्रोमो आकर जुड़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ब्रोमो आकर जुड़ जाएगा। अब ये पोजीशन क्या है, 1-2 सब्स्टिट्यूशन है। तो 1-2 सब्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, आर्थो को। तो ये आर्थो कंडीशन पर हो जाएगा। आर्थो का सिंबल आप ऐसे लगाते हैं स्मॉल ओ बनाकर, ये हो जाएगा आर्थो ब्रोमो एनिसॉल। आर्थो ब्रोमो ब्रोमो एनिसॉल, एनिसॉल आर्थो आर para condition. Due to the hindrance of the para condition, so para condition is the major components and bromine are substituted of the para condition. Name of the para bromoanisole, para bromoanisole. ओके, पैरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पैरा ब्रोमोएनिसॉल ये क्या होता है, मेजर होता है और ये माइनर होता है। ये 81% प्रोडक्ट होता है, ये 19%। तो मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट मेटा कंडीशन आर नॉट फाउंड फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज द closely bonds of the pi bonds in step by one step 135 delocalization of the hydrogen atom, so it is not form of the meta product. Please note this reaction. और लिखा बेटा, और ये और है, वो आर, ठीक है। मतलब बुक में एंड दे देता है तो एंड से मतलब नहीं है। ये तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये मेजर बनाएगा, ये माइनर। सबको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर है रिएक्शन बेटा। वन HBr इसमें निकल जाएगा ना, सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, 1 HBr निकल जाएगा। तो ये Br2 होते हैं, है ना, ये यहाँ पर 2 Br होगा ना ऑलरेडी, ये Br और Br सिंगल बॉन्ड से रहते हैं। तो 1 Br आपका hydrogen substitute and 1 Br of the substitutes of the this position 1 and 2 position. Okay,
नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, क्रॉफ्ट नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैटालिस्ट इसमें होता है आपका, कैटालिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड, और भी कैटालिस्ट ले सकते हैं HBF यानी एनहाइड्राइड मीडियम में ये होगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मीडियम में होता है ये। इसी की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन फॉर द एनिसॉल। आप अगर थ्योरी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं व्हेन एनिसॉल रिएक्ट विथ, व्हेन एनिसॉल react with methyl chloride at presence of anhydrous ammonium chloride. So substitutes of chlorine, substitutes of chlorine and methyl group attachments of ortho position, methyl group substitutes of ortho position, आर करके इसमें भी पैरा भी कर सकते हैं आप, पैरा, और यहाँ पर आर्थो, मेटा फॉर्म नहीं होगा, ये मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको। ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सीटोल्वीन, 2 में 1 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट, 1 2, तो पैरा यहाँ पे ऐसे करेंगे एल्केसी नेम में 2 मेथॉक्सी, 2 में मेथॉक्सी 1 का ये 1 2 मेथॉक्सी, ठीक है। 2 में क्या है आपका मेथॉक्सी है, किसके साथ जुड़ा हुआ है देखिए टॉल्वीन, अगर इसको हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा टॉल्वीन, टॉल्वीन हो जाएगा। अब टॉल्वीन में क्या जुड़ा हुआ है, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 2 मेथॉक्सी, 1 कार्बन अटैचमेंट है, 2 मेथॉक्सी टॉल्वीन। आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, अगर आर्थो पोजीशन में होगी तो 1 2 में हो जाएगा तो 2 मेथॉक्सी, और अगर यहां पर हो जाएगा तो हो जाएगा 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी टॉल्वीन। This reaction of the just opposite of the halogenation because the presence of the aluminum chloride of the higher acidic medium than chlorine, because next reaction of the carried out only acetic acid presence are, so substitutes of the only methyl group and reduce for the HCl। ओके, सेम कंडीशन में आपको इसको ध्यान से देखना है कि कैसे ये कौन सा कंपोनेंट निकल जाता है। ये दूसरा भी कैटालिस्ट ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी प्रेजेंस में भी हो सकता है यहाँ पर CS2, किसी किसी बुक में ये दिया है कि कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में फ्रीडल क्रॉफ्ट ने एनिसॉल को, ये एनिसॉल है आपका, एनिसॉल को रिएक्ट किया मेथिल क्लोराइड में, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, to 1 2 condition are the ortho condition and 1 4 condition of the para condition, not from 3 methyl toluene, because the delocalization of presence in the
aromatic ring or benzene ring. Yes, 4-methoxytoluene, the substitution of the para condition, so it is the presence of the methyl group. methyl group presence 1 2 1 2 3 4, तो 4 में लगा हुआ है आपका, ये 4 चेंज हो गया, इसलिए हमने ये मेथॉक्सी है तो 4-methoxytoluene. ओके, आर्थो कंडीशन है 1 2, तो 1 2 में था तो 2-methoxytoluene. अब यहाँ पर ये पैरा कंडीशन आ गया तो दोनों कंडीशन फॉर्म कर लेंगे. ये मेजर कंपोनेंट्स होता है, ये माइनर होता है, ये मेजर हो जाएगा आपका और ये माइनर. ओके, एनी प्रॉब्लम? आप 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, आर्थो एंड पैरा, ये इसीलिए और लिख दिया हुआ है बीच में. Most important reaction of the Friedel-Crofts reaction. Friedel-Crofts reaction is the acylation, aromatic ring containing of the anisole or another structure. But ether reaction of the containing only anisole, aromatic ethers are react with the Friedel-Crofts reaction, not react from the aliphatic contains of the ether, dimethyl ether, ethyl methyl ether, etc. Can you noted this reaction? Very good. And next reaction, nitration. Nitration. नाइट्रेशन ऑफ ईथर, ईथर चैप्टर चल रहा है तो बार बार ईथर लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपका नाइट्रेशन. when the anisole when the anisole react with HNO3, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं. ओके, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, presence of concentrate H2SO4 are react with anisole is nitric acid. HNO3 bond structure of the OH and O2. Okay, this is called the nitric acid at presence of the concentrate sulfuric acid. Same reaction, hydrogen artho condition or the para condition is substituted by hydroxyl group. So reduce of the water molecules and nitro group of the substitute this position or this position. Nitro group of substitutes are this position or this position. For this substitution, so it's called nitro group or para condition or artho condition. Artho condition same OCH3, two substitutions of the nitro. So 2 nitroanisole, 4 nitroanisole and ortho nitroanisole. Okay, major compound are generally
पैरा कंडीशन में होता है, ये पैरा है तो ये मेजर कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो पैरा नाइट्रो एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिसॉल में आर्थो, यहां पर आर्थो हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। ओके, ये तो आपका ये हो जाएगा। अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखना चाह रहे हैं तो आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हैं, किसी का भी आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं आप, जैसे मैथिल टू नाइट्रोफेनिल, मैथिल टू नाइट्रो, चाहे इसका लिख दीजिए चाहे इसका, इस पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा मैथिल, अगर ये वाला लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 4 नाइट्रो मैथिल 4 नाइट्रो फेनिल एस्टर, फेनिल एस्टर, फेनिल ईथर, सॉरी फेनिल यहां पर क्या होगा, ईथर होगा। फेनिल ईथर, same reaction, but it is presence of the concentrated H2SO4 react with the nitric acid. It is called the nitration. This change of the nitric acid presence of the this catalyst and form for the reactant for the H2SO4. It is called sulfonation. देख लीजिए आप लोग, प्रोडक्ट का जो है, जहां आपको नेम ना पता हो सब नेम लिखते चलिएगा। और एग्जाम में भी इसी तरह करते हैं आप, जब भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है या रिएक्टेंट, आपको नाम लिख देना है जो भी मेन कंपाउंड हो जाए। जैसे ये एनिसॉल है तो आप एनिसॉल लिख देंगे, नाइट्रिक है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, सल्फ्यूरिक है इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन एकदम साफ साफ आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा, और उसको आप इसी तरह आप बोर्ड की कॉपी में भी या अपनी फेयर कॉपी में भी अच्छे से बनाइएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए। Most important reaction are the Friedel-Crafts reaction. Presence of fill in the blanks of the reaction and application reaction. Aluminum chloride or carbon disulfide. सल्फोनेशन, नाइट्रेशन जगह पर देखो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, सिमिलरली सेम substitution of the nitro group are called nitration, substitution of the sulfide group it is called the sulfonation, and reverse reaction of the chloride chlorination, bromine bromination, iodine iodination. Used of ether, used of ether, सारी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस रिएक्शन को आप करके आप भेज दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा। वैसे जनरल तरीके से मैंने जो भी रिएक्शंस आपको कंप्लीट करवाए हैं ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए कि नहीं? वेरी गुड बेटा।
यूज्ड में मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ के द्वारा भेज ही दिया हूँ, मैं देख लीजिएगा। इट इज यूज्ड इन सर्जरी एज एनेस्थेटिक। हमेशा ईथर का यूज किसमें हो जाता है? सर्जरी में एनेस्थेटिक के रूप में दिया जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, इट इज, अब मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन सर्जरी, it is used in surgery as an anesthetic एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसमें ईथर का यूज होता है। इट इज आल्सो यूज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट में इसको काम यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट में रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट GER या ENT, REFRIGERANT, ये है ए। नेक्स्ट, it is used as extracting solvent, extracting solvent, extracting solvent, and fourth, it is also used for storing food, storing food, storing food by freezing or freezing or preservative or preservative, प्रिजर्वेटिव फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके गाइस, हाँ इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है बेटा इसको। मैन्युफैक्चर आपका स्मोकर में इसका यूज होता है, परफ्यूम के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इस मैन्युफैक्चर आपका इंडस्ट्रीज आप परफ्यूम एंड स्मोकर, ठीक है, ये दोनों स्मोकर पावर के लिए होता है। ये स्मोकर पावर के लिए भी होता है, और बाकी तो बहुत यूज है ईथर का। देखिए ईथर का यूज जो आप स्प्रे वगैरह करते हैं इसमें भी यूज हो जाता है। तो एल्कोहल ईथर का यूज बहुत होगा। ठीक है, इसको आप जितना भी देखेंगे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में भी है, हमारे लेबोरेटरी में भी है। ठीक है, और आप जान रहे हैं कि एनेस्थेटिक के रूप में इसको यूज ही किया जाता है। वो ठीक है बेटा, टाइम आउट हो रहा है। आज से आपका सेकेंड चैप्टर का एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कंप्लीट हो रहा है। कल इस चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम फिर से डिस्कस करेंगे। इसको नोट करके आपको उस नोट्स में अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, कल जैसे ड्रॉ रिएक्शन है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन है, इसी में जितनी भी रोजरमूंड है, जो भी रिएक्शन इसके अंतर्गत आ रही है, कल हम नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से लैब से मैं ना पढ़ा सकूं, तो घर से पढ़ाऊंगा।
तो आप लोग कल इन चैप्टर के जो भी नेमिंग रिएक्शन या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल मैं फिर से समझा दूंगा, नोट करके आप इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका हेलो एल्केन्स एंड हेरोइंस एंड सेकंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पीडीएफ के द्वारा भी और ओरली आपको जूम ऐप के द्वारा भी मैं आपको बता चुका हूं। कल इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा, आपको एक बार पूरी रिएक्शन अच्छे से देख लेना।